Friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the multiple choice question of chapter 2, that is a chameleon, from your lessons for extensive study. So let us begin with the first question. The first question जो हमारे पास है वो है, who is the writer of the lesson A Chameleon? हमारे पास ऑप्शंस हैं A.J. Cronin, Joseph Edison, A.V. Lucas, Anton Chekhov. Right answer is D, that is Anton Chekhov. नेक्स्ट इज हु वॉज वॉकिंग अक्रॉस द मार्केट स्क्वायर. मार्केट स्क्वायर में कौन जा रहा था? व्लादिमीर इवानिच, अचेमेलोव, येल्ड्रिन, प्रोहर. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अचेमेलोव. नेक्स्ट इज हु वॉज अचेमेलोव? कुक, जनरल, पुलिस सुपरिटेंडेंट, गॉल्डस्मिथ. राइट आंसर इज सी, दैट इज पुलिस सुपरिटेंडेंट. दैट अचेमेलोव जो था वो क्या था? पुलिस सुपरिटेंडेंट था. नेक्स्ट इज व्हाट वाज अचेमेलोव वेयरिंग? अचेमेलोव ने क्या पहना हुआ था? अ न्यू ओवरकोट, अ न्यू स्वेटर, अ न्यू कैप, अ कंफर्टर. राइट आंसर इज ए, दैट इज अ न्यू ओवरकोट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज ही कैरिंग अंडर हिज आर्म? वो अपने आर्म के अंडर क्या लेके जा रहा था? अ बुक, अ नोटबुक, अ फाइल, अ पार्सल. राइट आंसर इज डी, दैट इज अ पार्सल. नेक्स्ट इज हु वाज स्ट्राइडिंग आफ्टर द पुलिस सुपरिटेंडेंट? पुलिस सुपरिटेंडेंट के पीछे पीछे तेजी से कौन चल रहा था? अ ग्रे हेयर्ड पुलिसमैन, a red-haired old man, a red-haired woman, a red-haired policeman. Right answer is D, that is a red-haired policeman. Next is what was the name of the red-haired policeman? Red-haired policeman का नाम क्या था? Yeldrin, Mittridge, Franklin, Peter. Right answer is A, that is Yeldrin. Next is what was the red-haired policeman carrying? Red-haired policeman क्या लेके जा रहा था? A file of criminal record, a basket of fruits, a bunch of keys, a sieve full of gooseberries. Right answer is D, that is a sieve full of gooseberries. Next is there was dash all around. आसपास क्या था चारों तरफ? Crowd, noise, silence, none of the above. Right answer is C, that is silence. Next is who was looking out upon God's world unhappily and with disappointment. कौन देख रहा था परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया को बड़े ही दुखी दिल से और डिसअपॉइंटमेंट के साथ? The open doors of the tavern, the open doors of the shops and taverns, the people, the policemen. Right answer is B, that is the open doors of the shops and taverns. Next is there was the sound of dogs yelping. What is the meaning of the word yelping? Its meaning is barking, crying in pain. Both A and B are right, or none of the above. Right answer is B, that is crying in pain. Yelping means crying in pain. Ochimilov looked in the direction of the sound. अब Ochimilov जो था उसने उस yelping sound की तरफ जो था वो देखा. उसने क्या देखा? What did he see? उसने क्या देखा? A man, a crowd, a dog, a beggar. Right answer is C, that is a dog. Next is who was the owner of the timber yard? Timber yard का owner कौन था? Ryukin, Yeldrin, Pichkin, Vladimir Ivanich. Right answer is C, that is Pichkin. Next is what was Haryukin wearing? Haryukin क्या पहने हुए था? A black shirt and a khaki pant, a blue overcoat, a starched printed shirt, a starched cotton shirt. Right answer is D, that is a starched cotton shirt. Next is who was chasing the dog? कुत्ते का पीछा कौन कर रहा था? Haryukin, Vladimir Ivanich, Mitrich, a red-haired policeman. Right answer is A, that is Haryukin. Next is how did Haryukin seize the dog? जो ह्यूकिन था उसने डॉग को कैसे सीज किया, कैसे पकड़ा? बाय हर फ्रंट लेग्स, बाय हर हैंड लेग्स, बाय हर टेल, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट इज बाय हर हैंड लेग्स. नेक्स्ट इज व्हाई डिड द क्राउड गैदर्ड? भीड़ क्यों जमा हुई थी? राउंड द वेयर डिड द क्राउड गैदर्ड? कहाँ पे भीड़ जमा हुई थी? राउंड द मार्केट स्क्वायर, राउंड द बस स्टैंड, राउंड द टिम्बर यार्ड, round the police station. Right answer is C, that is round the timber yard. Next is it looks like a row, your honor. Who said these words? Row means होता है noisy world. तो किसने कहा था कि श्रीमान जी की ये जो है एक noisy world की आवाज़ लग रही है? The goldsmith, Mittridge, the policeman, a man in the crowd. Right answer is C, that is the policeman. Next is Ochimilov makes a half turn to the dash. Ochimilov half turn किस तरफ लेते हैं? And strikes over the crowd, और फिर वो crowd की तरफ जाते हैं.
राइट की तरफ टर्न लेते हैं, लेफ्ट की तरफ लेते हैं, अपने ऑफिस की तरफ टर्न लेते हैं, या होम की तरफ? राइट आंसर इज बी, दैट इज लेफ्ट। वो अपने लेफ्ट की तरफ टर्न लेते हैं। नेक्स्ट इज विच हैंड वॉज द मैन होल्डिंग इन द एयर एंड शोइंग हिज ब्लीडिंग फिंगर? जो बंदा था उसने अपनी जो फिंगर थी जिससे खून बह रहा था, ठीक है, उसको हवा में जो था वो दिखा रहा था, शो कर रहा था। कौन सा हैंड था, राइट और लेफ्ट? राइट आंसर इज ए, दैट इज राइट। वाई वॉज ह्यूकिन्स फिंगर ब्लीडिंग? उसकी फिंगर में से खून क्यों आ रहा था? बिकॉज अ डॉग हैड बीटन इट, बिकॉज अ कैट हैड बीटन इट, बिकॉज ही हिमसेल्फ हिट इट विद अ स्मॉल हैमर बाय मिस्टेक, या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज बिकॉज अ डॉग हैड बीटन इट। अब उस बंदे के उंगली में से खून क्यों आ रहा था? क्योंकि एक कुत्ते ने उसे काट लिया था। नेक्स्ट इज वाई हैड द डॉग बीटन ह्यूकिन्स फिंगर? अब कुत्ते ने उसकी उंगली को क्यों काटा था? बिकॉज ही हैड पुट अ सिगरेट इन हर फेस, क्योंकि उसने उसके मुंह में क्या डाल दिया था? सिगरेट डाल दिया था। बिकॉज ही हैड थ्रोन अ स्टोन एट द डॉग, क्योंकि उसने उस कुत्ते पर एक जो कंकर मारा था, पत्थर मारा था। बिकॉज ही हैड हिट द डॉग विद अ स्टिक, क्योंकि उसने उसे एक छड़ी के साथ मारा था। बिकॉज ही हैड स्टोलन डॉग्स पपी, क्योंकि उसने उसके पपी को चुरा लिया था। Because he had put a cigarette in her face, this is the right answer, that is option A. Next is what was Haryukin by profession? अब हरयुकिन जो था उसका पेशा क्या था? ब्लैक स्मिथ था, बार्बर था, डॉक्टर था, या फिर गोल्ड स्मिथ था? राइट आंसर इज डी, दैट इज गोल्ड स्मिथ, की वो एक सुनार का काम करता था। नेक्स्ट इज हरयुकिन्स ब्लीडिंग फिंगर हैड द लुक ऑफ डैश। हरयुकिन की जो ब्लीडिंग फिंगर थी वो किस तरह का लुक दे रही थी? फ्लैग ऑफ विक्ट्री, फ्लैग ऑफ इंडिया, फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान, फ्लैग ऑफ अमेरिका? राइट आंसर इज डी, दैट इज फ्लैग ऑफ विक्ट्री। नेक्स्ट इज हाउ डिड द डॉग लुक लाइक? कुत्ता कैसा था? इट वॉज अ वाइट पपी, ये सफ़ेद कलर का था, विद अ शार्प मजल, जिसके नोज और माउथ जो थे वो बहुत शार्प थे। इट हैड अ येलो पैच ऑन इट्स बैक, और इसके बैक पे किस कलर का पैच था? येलो कलर का। इट वॉज अ ब्राउन पपी, या फिर ये एक भूरा रंग का पपी था, विद शार्प मजल्स, जिसके नोज और माउथ बहुत शार्प थे, एंड अ ब्लैक पैच ऑन इट्स बैक, और इसकी बैक पे एक ब्लैक पैच था। या फिर डी, बोथ ए एंड बी आर राइट। बोथ ए एंड बी आर राइट, क्योंकि जो कुत्ता था वो वाइट कलर का था, उसकी नोज और माथ बहुत ही तीखे थे, और उसकी बैक पे येलो कलर का पैच था। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द पपी सिटिंग? इट्स विद इट्स फोर पास आउटस्ट्रेच। अब जो पपी था वो अपने फोर पास को आउटस्ट्रेच करके कहाँ पे बैठा हुआ था? इन द मिडल ऑफ द टिम्बर यार्ड के बिल्कुल बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ द मार्केट स्क्वायर के बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ द क्राउड, या फिर क्राउड के बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ अ गार्डन, या गार्डन के बीच में। इन द मिडल ऑफ द क्राउड, वो जो भीड़ थी उसके बीच में बैठा हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डॉग? डॉग की कंडीशन क्या थी? इट वाज trembling all over, there was misery and terror in her tearful eyes. Both A and B are right, none of the above. Right answer is C, that is both A and B are right। कि कुत्ता जो था वो डर के मारे कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और वह बहुत ही डरा हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज हरयुकिन टॉकिंग अबाउट मिट्री मिट्रिज? जो हरयुकिन था वो मिट्री मिट्रिज से किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? अबाउट फायरवुड, अबाउट द डॉग, अबाउट द प्राइस ऑफ द टिम्बर यार्ड? नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ए, दैट इज अबाउट फायरवुड, कि जो हरयुकिन था वो मिट्री से फायरवुड के बारे में बात करने आया था। नेक्स्ट इज वाई डिड हरयुकिन थिंक ही माइट हैव द डैमेजेस? अब हरयुकिन ने क्यों सोचा कि उसको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए? देयर वाज अ रेगुलेशन अबाउट द बाइटिंग ऑफ द डॉग ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कुड क्लेम द डैमेजेस। एक रेगुलेशन था जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उसके ओनर को उसके लिए क्लेम देना होता है उस बंदे को जिसको काटा होता है। देयर वॉज अ रेगुलेशन अबाउट द डॉग्स इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कुड क्लेम द डैमेजेस, कि डॉग की इंजरी हुई है उसके बेसिस पे उसको डैमेजेस जो है वो मिलेंगे। बिकॉज ही वॉज अ गोल्ड स्मिथ, क्योंकि वो एक सुनियार था। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज ए, there was the regulation about the biting of a dog on the basis of which he could claim the damages। कि एक रेगुलेशन था जिसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई कुत्ता
काट लेता है तो फिर उसके लिए क्षतिपूर्ति है उस बंदे को मिलेगी जिसको उसने काटा है. वट वॉज Achimala's फर्स्ट रिएक्शन ऑन हरियुकिन्स कंप्लेंट. जब हरियुकिन ने कंप्लेंट किया कि कुत्ते ने उसे काट लिया तो Achimala जो कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट था उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? That he would teach a lesson to the people who let their pets run everywhere. कि वो उन लोगों को पाठ पढ़ाएगा जो अपने पेट्स को हर जगह छोड़ देते हैं खुला. There he would that he would teach a lesson to the people who let their dog run everywhere. कि वो उन लोगों को पाठ पढ़ाएगा जो अपने कुत्तों को कहीं भी छोड़ देते हैं. That he would return the dog to its owner. या फिर वो कुत्ते को उसके मालिक के पास लौटा देगा. नन ऑफ द अबव या कुछ भी नहीं. राइट आंसर इज बी, दैट इज दैट ही वुड टीच अ लेसन टू द पीपल हु लेट देयर डॉग रन एवरीवेयर. कि वो लोग जो अपने कुत्तों को हर जगह जो है छोड़ देते हैं उनको वो एक सबक सिखाएगा. वाई डिड द लेटर रिफ्यूज टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द ओनर ऑफ द डॉग. उसने जो कुत्ते का जो मालिक था उसके अगेंस्ट जो था कोई भी एक्शन लेने से मना क्यों किया? बिकॉज द ओनर ऑफ द डॉग वॉज टर्न आउट टू बी जनरल्स ब्रदर. क्योंकि पता लगा कि जो कुत्ते का जो मालिक है वो जनरल का भाई है. बिकॉज इट वॉज जनरल्स डॉग. क्योंकि कुत्ता जो था वो जनरल का था. बिकॉज द डॉग वॉज ऑफ हाइब्रिड. क्योंकि ये हाइब्रिड कुत्ता था. नन ऑफ द अबव या फिर इनमें से कोई भी नहीं. राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज द ओनर ऑफ द डॉग वाज टर्न्ड आउट टू बी जनरल्स ब्रदर. अब उसने उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया मालिक के अगेंस्ट? क्योंकि ये कुत्ता जो था वो साधारण बंदे का नहीं था, जनरल के भाई का था. Next is, why did Ochimilov think that the dog had not bitten the Haryukin? Ochimilov ने अब ऐसा क्यों सोचा कि जो कुत्ता है उसने हरियुकिन को नहीं काटा है? Because it was a little dog. क्योंकि ये छोटा कुत्ता था. Because हरियुकिन was a great hulking fellow. क्योंकि जो हरियुकिन था वो बहुत बड़ी देह वाला बंदा था. Because the dog was so small to reach the finger of the हरियुकिन. क्योंकि जो कुत्ता था बहुत छोटा होने की वजह से इतने बड़े बंदे की उंगली तक नहीं पहुंच सकता था. All of the above. Right answer is D, that is all of the above. Next is, what is हरियुकिन्स brother by profession? हरियुकिन का भाई by profession क्या है? He is a manager of a company. He is a school teacher. He is in the police. He is an actor. Right answer is C, that is he is in the police. Next is, according to the policeman, general dog are of low breed, setters, pit bulls, none of the above. Right answer is B, that is setters. Next is, what would happen if a dog turns up in the Petersburg or Moscow? ये मॉस्को या पीटर्सबर्ग में अगर एक डॉग जो टर्न अप होता है तो क्या किया जाएगा? इट वुड बी रिटर्न टू द ओनर इमीडिएटली. ये जो है ओनर को रिटर्न कर दिया जाएगा. या फिर इट वुड बी स्ट्रेंगल्ड इन अ ट्विंकलिंग. या फिर इसका गला दबा दिया जाएगा. नेक्स्ट, इट वुड बी नॉट बी रिटर्न टू द ओनर. इसको मालिक को जो है वो नहीं लौटाया जाएगा. या फिर इट वुड बी सेंट टू एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट. राइट आंसर इज बी, दैट इज इट वुड बी स्ट्रेंगल्ड इन अ ट्विंकलिंग. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरल्स कुक? जनरल के कुक का क्या नाम था? स्मिथ, प्राहर, परोहर. राइट आंसर इज D, that is Parohar. Next is, what was the name of General's brother? जनरल के भाई का नाम क्या था? विभाग, व्लादिमीर इवानिच, व्लादिमीर इवानिच, व्लादिमिस इवानिच. Right answer is C, that is Vladimir Ivanich. Next is, who laughed at Haryukin? हरियुकिन पे कौन हंसा? Parohar, the policeman, the crowd, Mitrich. Right answer is C, that is the crowd. नेक्स्ट इज, हु टेक्स अवे द डॉग? कुत्ते को कौन ले जाता है? द पुलिस सुपरिंटेंडेंट, द रेड हेयर्ड पुलिसमैन, द जनरल्स ब्रदर, परोहर. राइट आंसर इज डी, दैट इज परोहर. नेक्स्ट इज, अ कैमेलियन इज अ डैश विच चेंजेस इट्स कलर सूटिंग टू इट्स सराउंडिंग. एक कैमेलियन क्या है जो कि अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए अपने कलर को चेंज कर लेता है? इट्स अ काइंड ऑफ लिजर्ड, रेप्टाइल, बर्ड, पेट एनिमल. That is lizard.
Next is a chameleon is also a dish who changes his stand opinion every now and then. एक कैमिलियन एक वो भी है जो कि अपना जो स्टैंड है, अपने ओपिनियंस है, उसको बार बार बदल लेता है. A chameleon is a guys, man, woman, liar. ठीक है, कैमिलियन इज़ अ मैन कि जो बंदा है वो एक कैमिलियन की तरह ही है. वो जहाँ पे उसका स्वार्थ होता है तो वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर लेता है. नेम द कैरेक्टर हु इज़ मोस्ट सूटेबल टू द टाइटल ऑफ द लेसन अ कैमिलियन. अब जो ये लेसन के हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, लेसन हमने पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो उसमें जो कैमिलियन है वो टाइटल को जो बिल्कुल सूट करता है वो कौन सा कैरेक्टर है. नाम है हमारे पास मिट्री, मिट्रिच, हर्युकिन, प्रोहर, ऑच्योमेलव. राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑच्योमेलव, क्योंकि वो अपनी स्टेटमेंट बार बार कुत्ते को लेके चेंज कर रहा है. कभी तो वो कहता है कि वो उसको मार डालेगा, कभी वो कहता है कि उसके मालिक को सबक सिखाएगा, लेकिन जब उसको पता लगता है कि वो जनरल का कुत्ता है या जनरल के भाई का कुत्ता है तो वो अपनी स्टेटमेंट टोटली चेंज कर देता है. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द जनरल. जनरल का नाम क्या था? व्लादिमीर इवानिच, प्रोवर, जिगलॉब, चार्ल्स. राइट आंसर इज सी, दैट इज जिगलॉब. जनरल का क्या नाम था? जिगलॉब. So it was all about the multiple choice questions of the lesson A Chameleon. I hope that you might have watched the video till end and you have understood all the questions. I have covered almost all the topics, all the probable questions from this lesson. I hope this video will prove useful to you. So see you next time in my next video with a new topic. Till then, goodbye. Have a nice time. And if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe, like and share it.